Okay, see. So we were here on discussion. Discussion interview means suppose a topic or a problem will be given to you, and you need to discuss on that. You need to sit with interviewers. I mean, you will have to sit with a group of number of people. Number of people will be there, and interviewers will be sitting in your, like, suppose at the back side, and they will observe your performance, observe your discussion, to what you are discussing and what is your topic. And I mean, topic will be given by them only, but how the topic is to be started, how the topic is to be ended, and what points are should be included in the discussion. So they will observe all these things, whether you are performing well or not. And examples can be current topics, current issues also. Like I gave you earlier, I gave you an example of coronavirus. So what is impact of coronavirus on pandemic, I mean, what is the impact of pandemic coronavirus on maybe educational institutions? Okay, so maybe on uh, well established companies, new entrepreneurs, that way. So how stock market is playing, the role of stock market in a developing economy. So something like that can be included in the discussion interviews. Okay. Next is stress interviews. Now, what do you mean by stress interview? Means to give you stress? No. No. Stressful situation. Situation, yes. Yeah, stressful situation will be given to you deliberately. Deliberately, you will be put in the situation which will be little stressful for you, but to check, but it is given to check whether you are able to control your emotions, whether you are able to control your anger, whether you are able to control your aggressiveness to show what has to be shown actually. So these points are to be checked by the interviewer, to to check whether you are emotionally balanced person. Okay, so a situation will be given to you in which a little stress will be imposed on the interviewee, and he will be checked with the aspects of, with the etiquettes of the performance that an interview has to um, I mean actually perform while doing this work. Maybe a discussion, maybe in the form of discussion, maybe in the form of role play, or maybe in the form of debate. It can be done in the form of debate also. Suppose a topic is given, a topic is thrown on the group of people, so now they have to discuss on that particular topic. So उसमें क्या किया जाता है, अगर आपने टेंशन में आ गए, प्रेशर में आ गए कि मुझे रिएक्शन देना ही है, मुझे पॉजिटिव आंसर देना ही है। सो सपोज उस प्रेशर में आकर आपने कोई गलत आंसर दे दिया, सो दैट विल इम्पोज अ नेगेटिव इंप्रेशन। आया समझ में? सो स्ट्रेस इंटरव्यूज, ठीक है। नेगेटिव इंप्रेशन भी हो सकता है उससे। देखो अभी अभी जो मैंने बताया ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट में इवन फील द, I mean, that may impose a very bad feeling on employees' part, maybe candidates' part. जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, आप उनसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे कुछ पूछे जा रहे हैं, उनका चेक कर रहे हैं उनका स्ट्रेस लेवल, तो उनको थोड़ा बहुत ऐसे खराब भी लग सकता है। सो नेगेटिव इंप्रेशन भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, मतलब आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया एंड देन दे स्टार्टेड क्राइंग, सो इट शुड नॉट बी दैट, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा स्ट्रेस इंटरव्यू ने कुछ अगर ज़्यादा यूज़ किया जाए तो फिर ये नेगेटिव अप्रोच भी डाल सकता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटराइज्ड इंटरव्यूज। कंप्यूटराइज्ड इंटरव्यूज मीन्स, computerized means online. Now one person is sitting maybe in US, and another person is sitting in India, and another person is in Australia, another person is in Europe. Now there are different persons of different geographical areas. Now will I go, or will they have to come back to one place to give an interview? No, it is not necessary, because nowadays it is very famous, computerized interviews.
मीन्स आपको एडवांस में बता दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर टाइम है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करनी है एंड देन पर्सन हैज टू बी प्रेजेंट वाइल गिविंग द आंसर्स। मतलब आपका रिकॉर्डेड इंटरव्यू नहीं चलेगा, रिकॉर्डेड आंसर्स आपके नहीं चलेंगे, आपके भी और इंटरव्यूअर के भी रिकॉर्डेड क्वेश्चंस नहीं चलेंगे, बोथ शुड बी प्रेजेंट फेस टू फेस। ऐसा होता है ना, मैंने क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर लिए और आपके पास डाल दिए, तो वो भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्या पता रिकॉर्डेड क्वेश्चंस है तो जब मैं आंसर्स कर रही थी तो मैं कॉपी तो नहीं कर रही थी, ऑनलाइन सर्च करके तो आंसर नहीं कर रही हूँ। सो वैसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो आप सामने रहोगे तो मुझे पता रहेगा कि ही इज वॉचिंग मी एंड देयरफॉर आई एम नॉट एबल टू डू और आई एम नॉट एबल टू गूगल सर्च। ठीक है, वैसे भी नहीं होना चाहिए ना। तो कंप्यूटराइज्ड इंटरव्यू मतलब स्क्रीन ऑन करके दोनों पार्टीज प्रेजेंट होती है, कंप्यूटर स्क्रीन पे ये इंटरव्यू लिया जाता है। दैट्स इट। ये ग्रुप डिस्कशन है, मतलब ग्रुप डिस्कशन में क्या सिलेक्शन करते समय ग्रुप डिस्कशन का क्या यूजफुलनेस होता है, मतलब क्या बेनिफिट होता है। 15-20 पीपल होते हैं इसमें, एक साथ किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं और पार्टिसिपेंट्स को चेक किया जाता है कि वेराइड पीपल, मतलब अलग अलग लोगों की थिंकिंग जब अलग अलग होती है ना उसे कहते हैं वेराइड पीपल। मतलब अगर जैसे आपकी थिंकिंग अलग है और मेरी थिंकिंग अलग है तो हम दोनों को साथ में खड़ा कर दिया तो डिबेट तो बढ़ जाएगी ना, डिस्कशन बढ़ जाएगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जीएसटी का ऐसा होना चाहिए सिस्टम, नहीं नहीं ये पहले वाला सिस्टम सही था, जीएसटी होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो डिस्कशन शुरू हो गई, ठीक है। तो उस डिस्कशन में हमारे सोशल स्किल्स चेक किए जाते हैं कैंडिडेट्स के। एसेसिंग मतलब चेक करना। तो ये ग्रुप डिस्कशन क्यों यूजफुल होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसमें। तो सोशल स्किल्स चेक किए जाते हैं कि मैं एक पर्सन से बात कर रही हूँ तो मैं सेंसिटिव हूँ कि नहीं हूँ, मतलब मैं उसके ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए आंसर दे रही हूँ कि नहीं, कि उसको मैंने ओवरलुक कर दिया, ओवरलुक कर दिया तो उसको हर्ट हो सकता है ना सामने वाले को। डिसएग्रीमेंट्स तो ज्यादा नहीं है मेरी, क्रिटिसिज्म ज्यादा, मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करती हूँ किसी को, ज्यादा नेगेटिव तो नहीं बता रही हूँ किसी को सामने वाले को, मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए सोशल स्किल्स बोलते हैं इनको। तो सोशल स्किल्स चेक हो जाएंगे मेरे, इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी चेक हो जाएंगे कि मेरा सोचने का तरीका क्या है, मेरे मेरे आइडियाज कैसे हैं, मैं कैसे इस पर्टिकुलर आइडिया में से मेरिट्स और डीमेरिट्स निकालती हूँ। और एप्टीट्यूड भी पता लग जाता है। एप्टीट्यूड किसी भी सेंस में हो सकता है, पॉलिटिकल, रैशनल और रिलीजियस, और आपके व्यूज़ क्या है एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, अगर आपके व्यूज़ चेक करने हो, आपका एटीट्यूड चेक करना हो एक पर्टिकुलर डिस्कशन में, कि एग्रेसिव तो नहीं हो जा रहे हो, गुस्सा तो नहीं हो जा रहे हो, नेगेटिव तो नहीं जा रहे हो, कि अभी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिवली आंसर कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें एटीट्यूड चेक किया जाता है। सो दिस वाज डन, ये हमारा ग्रुप डिस्कशन था, ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत यूजफुल होता है। एंड उसमें बताया गया था कौन से स्किल्स आपकी चेक किए जाते हैं, सोशल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, तो मतलब हमने इंटरव्यू के टाइप्स किए, जो इंटरव्यू अभी हमने स्टेप में पढ़ा था ना, प्रोसीजर में एक एक स्टेप था, 4th स्टेप इंटरव्यू। उसमें इंटरव्यू में सबसे पहला इंटरव्यू का पैटर्न कौन सा होता है, टाइप कौन सा होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेकंड अनस्ट्रक्चर्ड। थर्ड क्या होता है, मल्टीपल एंड ग्रुप, जैसे पैनल इंटरव्यू भी कहते हैं। डिस्कशन इंटरव्यू, एक टॉपिक आपको दिया जाता है, उस पर डिस्कशन किया जाता है और आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। स्ट्रेस इंटरव्यू, एक ऐसी सिचुएशन में आपको डाल दिया जाता है डेलिबरेटली जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल, इमोशनल बैलेंस चेक किया जाता है, वेदर यू आर इमोशनली बैलेंस्ड। आपकी शक्ल बता रही है कि आप गुस्सा हो गए या टेंशन में आ गए हैं, तो वो हमारी शक्ल पे आ जाता है ना। तो वो इंटरव्यूअर वही तो चेक कर रहा है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड इंटरव्यू मतलब ऑनलाइन, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे लिया जाता है, जिसमें सिर्फ इंटरव्यूअर और इंटरव्यू ही प्रेजेंट है और कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं होता। ओके, सो वी आर डन विद द चैप्टर सी। These are few objectives which are available with you, and we have theory questions also, short note type questions also, so you can have a look on all these points, it will be useful to you. Okay, I hope you have understood everything. Any doubts so far? Come
I'm not No, ma'am. unmuted. Yeah. No, ma'am. ओके, चलो फिर हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मतलब कल तो आपका ऑफ है ना? कल ऑफ है ना? और फ्राइडे में हाँ, लेक्चर ma'am. नहीं होते Okay. हैं आपकी क्लास हाँ, में, ma'am. सो सैटरडे। ओके Yes, ma'am. ओके, so we'll meet on Saturday. If something will be there, मतलब ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं बताऊंगी सैटरडे को। खैर इतना तो कुछ नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है इंटरनल एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपको थोड़ा बहुत ऑलरेडी आइडिया दे चुकी हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब आप क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे आपका पेपर होगा तो उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे ध्यान देना। ओके, और थ्योरी है तो सिर्फ ऑफकोर्स थ्योरी। इंटरनल एग्जाम से रिलेटेड और कोई कुछ मेरे हिसाब से तो आपको डाउट होना नहीं चाहिए। और गूगल फॉर्म में जैसे एमसीक्यूज के पैटर्न में होगा वैसे ही होगा, और आज आपको टाइम टेबल भी मैम ने शेयर कर दी है। सो आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी अदर डाउट्स और क्वेश्चंस। ओके, सो कैन वी एंड द लेक्चर नाउ? Yes, ma'am. ओके।